Good morning, students. This is Dr. Mukul Jain, and we are studying our subject corporate tax planning. Today, we plan to talk about advanced tax. Advanced tax is another very important topic for businesses, for individuals also. What is the concept of advanced tax? Who have to pay advanced tax? Why this advanced tax is there? So we will try to discuss it. Fine. So for that, I'm going to share again one of the presentation. So let me share my presentation with you. Again, this is a presentation by the Income Tax Department itself. So provisions relating to the payment of advance tax. Again, like yesterday we had talked about TDS. So all these provisions of TDS, advance tax, they have been introduced by the government to catch as many people in the tax dragnet as possible. Because what used to happen, people used to pay their, so just 1 minute, I'll minimize it to talk to you. What used to happen, people used to pay tax at the end of the year, people or businesses. Now, at the end of the year, it might happen with individuals also, it might happen with the business firms also, that you may spend all your money and there is nothing left at the end of the year to pay your taxes. So although you are liable to pay taxes, but you are left with no other money, isn't it? So therefore, and then the Income Tax Department and the government will be bereft of any finances for the whole year, and in one go all the money is coming. So that was another problem. So therefore, the government also wants that the money should come regularly, on regular basis to its coffers. And secondly, there will be no probability of default by the public also. So that was the thinking behind it. Similarly, like TDS also, we studied about TDS, and TDS also, when the money is being generated at the source, so the onus is on the source to deduct the tax. So a lot of people will come under the tax dragnet. So at least if the person is not having a tax liability, or the firm is not having a tax liability, or the company is not having a tax liability, still they will file the tax return to get the refunds. And the government will also come to know that how many people have got some money and some payments, even if you are earning interest from a bank. So it is under the radar of the government. So those are the basic purposes. सर तो TDS को भी एक टाइप का एडवांस टैक्स बोल सकते हैं? नहीं, TDS को एडवांस टैक्स वैसे बोल सकते हैं, बट टेक्निकली एडवांस टैक्स का मतलब ये है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कि आपको या आपकी बिजनेस फर्म को या कंपनी को ऑन रेगुलर बेसिस क्वार्टरली अपना टैक्स भरते रहना है। क्वार्टरली बेसिस पे अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स भरते रहना है। जो TDS है वो भी एक तरह से, वैसे आप देख लीजिए, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है, बट टेक्निकली इट इज नॉट नोन एज अ एडवांस टैक्स। बट हाँ, गवर्नमेंट को पहले ही मिल रहा है और रेगुलरली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है उससे। किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रेंट दे रहा है, कोई किसी को फीस मिल रही है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कट के आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आते चला जा रहा है, ठीक है ना। तो कहने को आप कह सकते हैं, बट टेक्निकली हम उसको एडवांस टैक्स नहीं बोलते। So provisions, if you see the slide, it's written that provisions relating to payment of advance tax. So the first lines I will read: liability to pay advance tax. Who has got the liability to pay advance tax? So it is written as per section 208. Every person whose estimated tax liability for the year is rupees 10,000 or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax. So the first line says, if you feel that your
business firm or your company or you as an individual's tax liability is likely to go above 10,000 rupees in the financial year, then you are supposed to pay the advance tax. So this is the basic premise of advance tax. Now, in further, it is written person not liable to pay advance tax. That means those who are not liable to pay advance tax. So once again, it is written every person whose estimated tax liability for the year is 10,000 or more is liable to pay advance tax. Whose tax liability is below 10,000 are not supposed to pay the advance tax. Then it is written over there in the slide. However, a resident senior citizen, that is an individual of the age of 60 years or above, during the relevant financial year, not having any income from business or profession, is not liable to pay advance tax. If a person is a senior citizen and he or she is neither doing any business nor pursuing any profession, profession means may not be under employment also, so then this person is not liable to pay advance tax. However, if a person above the age of 60 years is pursuing a profession, is doing some business, then they are also supposed to pay advance tax. So what does this mean? What is the difference then? The difference is that for senior citizens, if they have any income from, say, shares income, from investment income, interest income, then they are not liable to pay advance tax. However, if a person is not a senior citizen, even if you people have any income from investments, from shares, from fixed deposits, from interest, from bonds, debentures, etc., then you are also, and if your income, if your tax is likely to exceed 10,000 rupees, you have to pay your advance tax. That is the difference between senior citizens and general citizens. And in the newspapers also, it keeps on appearing. If you now watch the newspapers, every quarter, there will be a half-page advertisements in the newspapers that please pay your advance taxes in time. Now, for example, there is an example given over here. If you see at the bottom, illustration is written. Mr. Kumar is running a provision store. The turnover of the store for the financial year 1920 amounted to 1 crore 84 lakh. He wants to declare income under section 44 AD at 8% of the turnover. What is section 44 AD? Presumptive income. Presumptive taxation under presumptive income, which I taught you last time. Yes sir. 44 AD. हाँ, उसमें 2 करोड़ की जिसकी टर्नओवर है वो 8% का प्रॉफिट दिखा करके अपना टैक्स दे सकता है. बट ही वांट्स टू डिक्लेयर इनकम, इसलिए लिखा है, वो उसको बोलते हैं सेक्शन 44 AD. ही डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, विल ही बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स? अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि ये प्रिजम्पटिव इनकम में जाना चाहता है, तो क्या इसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी? अब इसमें एक और रूल है कि प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस पे अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तब उन लोगों को एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं. तो देखिए ये आंसर लिखा हुआ है. मिस्टर कुमार सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 44 AD. क्राइटेरिया क्यों सेटिस्फाई करते हैं? क्योंकि 2 करोड़ से कम की इनकी टर्नओवर है in respect of provision store business, and hence he can adopt the provision of section 44 AD and declare income at 8% of the turnover. So a taxpayer, a taxpayer opting for the presumptive taxation scheme of section 44 AD is also liable to pay advance tax in respect of business covered under section 44 AD. Thus Mr. Kumar adapts the provision. He is also liable to pay in respect of income generated. ये तो गलत लिखा है इसमें. प्रिजम्पटिव वालों के लिए तो मना होता है. 2 करोड़ का 8% कितना हो गया? अगर किसी की 2 करोड़ है टर्नओवर, उसका 8% कितना होगा? 16 लाख सर.
अच्छा, तो 16 लाख का, हाँ अगर बिजनेस है तो 16 लाख का 30% कितना हो गया? 4,80,000। हाँ कितना? 4,80,000। 4 लाख 80, हाँ ये तो 10 लाख से ऊपर हो गया फिर तो टैक्स। बट इसमें मैंने कहीं पढ़ा था ये तो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इसी में नीचे लिखा है इज आल्सो लायबल टू पे। इसमें चलिए अभी हम इसको देखते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि प्रिजम्पटिव वालों के लिए इन्होंने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है एनीवे इसको, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि उसकी इनकम क्योंकि 10,000 से ऊपर हो गई है। चलिए इसको थोड़ा सा भी अपियंस में रखते हैं। इलस्ट्रेशन एक और देखते हैं, इसमें एक और इलस्ट्रेशन है। मिस्टर विपुल, एज 39 years, is running a medical store. The turnover of the store for the financial year amounted to 40 lakh. His accounts reveal a net profit of 2,60,000. Will he be able to pay advance tax? अब इसका 2,60,000 पे निकालो, इसका टैक्स कितना बनता है? अब ये क्योंकि इंडिविजुअल है, इसका फर्म के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। फर्म पे तो देखिए 30% है, और अगर आपकी कंपनी है, कंपनी के लिए रूल ये है टैक्स का कि कंपनीज विद अ टर्नओवर अप टू 250 crores have to pay tax at the rate of 30%, and companies above the turnover of 250 crores have to pay the tax at the rate of 25%. उसको भी अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने 22% कर दिया था। तो यहां पर क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो इसके पर टैक्स स्लैब लगेगा, तो 2,60,000 के ऊपर तो इसका टैक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है नीचे, द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर विपुल इज 2,60,000 टैक्स, so the tax will be nil. Hence Mr. Vipul is not liable to pay advance tax because normal rate ये है तो आपको बताए थे, up to 2.5 lakh nil, 5% above 2.5 lakh up to 5 lakh। फिर एक इसको वो भी मिलता है 12,500 रुपए का एक रिबेट मिलता है 87A में, जिनकी इनकम 5 लाख तक की है, तो इसका टैक्स जीरो हो जाएगा, तो इसको ही डजंट हैव टू पे एनी एडवांस टैक्स। ये देखिए ये है रूल एडवांस टैक्स का। अगर आप देखें, इफ यू सी ओवर हियर, ऑल एसएससीज अदर देन एलिजिबल एसएससी एज रिफर टू अंडर, ये देखो यहाँ ना ऊपर गलत लिखा हुआ था, वही मैं देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ आ गया सी, ऑल एसएससीज ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर देन द एलिजिबल एसएससी एज रिफर टू इन सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA। 44AD क्या है? फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। So presumptive income other than presumptive income वाले को टैक्स देना है। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स आर एज फॉलोज। बाय 15th June you have to pay minimum 15% of advance tax. For example, your financial year starts from April, so April May, मतलब पूरा क्वार्टर भी पूरा नहीं होने दिया, इन्होंने कहा है अप्रैल में 2.5 महीने तक का आपके बाद आपको 15 जून को 15% ऑफ एडवांस टैक्स। एक तरह से आपको यू हैव टू मेक एन एस्टिमेशन ऑफ योर इनकम, एस्टिमेशन ऑफ द इनकम लगा के आपको 15% देना है। फिर 15 सितंबर उसके बाद फिर आप एस्टिमेशन लगाओगे तो जितना भी टैक्स आपका टोटल बनता है उसका 45% आना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो जो 15% आपने दिया हुआ है वो माइनस हो जाएगा आपका जो दे चुके हो। एंड बाय 15 दिसंबर minimum 75% of advance tax, and by 15th March minimum 100% of advance tax. सर जो फिर बैलेंस शीट में जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है वो इसी की वजह से बनता है क्या, एडवांस टैक्स की वजह से? कौन सा डेफर्ड टैक्स जो सर एक लाइन आइटम होता है बैलेंस शीट में, वो एडवांस टैक्स की वजह से ही बनता है क्या? डेफर्ड का तो ये मतलब हुआ कि दैट वी हैव नॉट पेड द टैक्स एंड वी विल पे इट इन द फ्यूचर। दैट डेफर्ड का मतलब तो ये हो गया। डेफर्ड तो इज ऑपोजिट ऑफ एडवांस टैक्स। नहीं सर, डेफर्ड टैक्स क्या कहते हैं, मैंने एसेट में भी देखा है और लायबिलिटी में भी देखा है बैलेंस शीट में।
ओके, उसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो उसी को डेफर्ड टैक्स में इसको एडवांस को ही बोलते हैं क्या, दैट आई एम नॉट श्योर, because as per my common sense deferred tax means that some tax is due but you have to pay and you have made provision for it right now. You have to pay some tax in the future and you have made a provision in your balance sheet for those taxes, but ये तो आपने already pay कर दिया advance tax, तो it should not be called as a deferred tax. ये तो एडवांस है कि आपने पे कर दिया, आपकी लायबिलिटी साल के आखिर में बनेगी, आपने पहले पे कर दिया। डेफर्ड का मतलब ये हो। यस प्लीज, एनीबॉडी वुड लाइक टू थ्रो लाइट? यस यस सर, बैलेंस शीट में डिफर्ड टैक्स एसेट भी आता है, लायबिलिटी भी आता है। इन केस हमारा एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा दे दिया है और बाद में टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो कम देना था, तो हमारी डिफर्ड टैक्स एसेट में आ जाता है, वो नेक्स्ट टाइम के टैक्स से डिडक्ट हो जाता है। ओके फाइन फाइन, हाँ ये दिस मेक सेंस, वेरी गुड। कौन बोल रहा था अभी? मैं आपका देखा नहीं उसमें चैट में, कौन बोल रहा है? हु वाज स्पीकिंग? नेहा, नेहा, नेहा डेमला। यस सर। हाँ, yes, yes, that makes sense. Yes. So, deferred tax is probably you have paid more than your liability, so it will come in your balance sheet. Yes. यहाँ पर भी हो सकता है, इन एडवांस टैक्स भी हो सकता है, बट यू डो नॉट नो कि आपने ज्यादा दिया या कम दिया है। यू विल कम टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है 15 जून तक आपका अच्छी टर्नओवर हो गई। जैसे अभी अगर हम 1920 ईयर देखें, 1920 में मार्च तक आते आते क्या था कि थोड़े लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई थी, तो जो कंपनी सोच रही थी कि हम मार्च में बड़ा अच्छी सेल करेंगे, तो मार्च में उनकी सेल एकदम से स्टॉप हो गई। तो अब क्या होगा कि उन्होंने जो एडवांस टैक्स दे चुके हैं, पहले 15 जून को दिया, 15 सितंबर को दिया, 15 दिसंबर को दिया, और 15 मार्च को फिर वो देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे उसको, या हो सकता है ज्यादा दे दिया हो तो कुछ भी ना दिया हो कुछ कंपनीज ने अपना एडवांस टैक्स, और उनका बनता है तो वो रिफंड लेंगे गवर्नमेंट से। तो इट में हैपन इन एडवांस टैक्स आल्सो। और 15 मार्च तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, उसके बाद अकाउंट्स बनते हैं, ऑडिट होते हैं, तो ये एक अंदाजे के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि फिर भी आपको जितनी आपका लायबिलिटी बनती है उसका 100% आपको देना है। अब देखिए ऑफिशियल सेशन है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बस ऐसे बनाए हुए हैं कि बिजनेसेस को अब कैसे एस्टिमेशन लगाएंगे कि 100% है, कुछ ना कुछ रह जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना 31 तारीख के बाद, 3-4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कंपनीज के अभी तक फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ कंपनीज के तो अभी तक नहीं आए हैं जो 31 मार्च के हैं, अपने जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं, कुछ के आ गए हैं, कईयों के अभी भी नहीं आए हैं। तो टाइम लगता है बड़ी कंपनीज में निकालने में, और वो ये कह रहे हैं कि साहब आप एस्टिमेशन कर लीजिए। तो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस वेदर इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिजनेस फर्म, इंडिविजुअल, हर एक के लिए अप्लाई करता है। अब रूल बना दिए तो बना दिए, पीपल हैव टू कंप्लाई। अब इसका एस्टिमेशन करके ही लगा सकते हैं लोग अपना। हाँ, ये जो प्रिजम्पटिव में देखिए, हाँ वो जो कंफ्यूजन था ये आ गया। ये इसमें क्या है, देखिए नीचे लिखा हुआ है टैक्स पेयर्स हु, अरे नीचे आ रहा है, टैक्स पेयर्स हु ऑप्टेड फॉर taxpayers who, हाँ ये है, taxpayers who opted for presumptive taxation scheme of 44AD और section 44ADA। ओके, तो एडवांस टैक्स देना है, बट उनको बीच बीच में नहीं देना है। इन लोगों को इकट्ठे देना है बाई 15 मार्च। ओके, ये मेरा थोड़ा सा, मैंने वही सोच रहा था कि इनको तो बीच में नहीं देना होता, इनको 15 मार्च तक देना होता है मिनिमम 100% ऑफ एडवांस टैक्स। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी कितनी टर्नओवर हो गई है 15 मार्च तक, तो उसके हिसाब से 8% जो है आप लगा के दे दो। थोड़ा सा कम ज्यादा होगा वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा 31 तारीख के बाद, जब आप अकाउंट बनाओगे आपके 31 मार्च के बाद। तो इनको, इनके लिए एडवांस टैक्स ये है, इकट्ठे देना है इनको 100% बाई 15 मार्च। इसलिए वहां पर वो लिखा हुआ था, तो वो भी गलत नहीं थे टेक्निकली। तो टेक्निकली दे डोंट हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स,
those who have opted for presumptive taxation scheme, they have to pay in lump sum whatever tax. So because it is before 31st March, so therefore they are calling it as an advance tax. So this is the difference. So this we will have to remember. इसके लिए बहुत बड़े बड़े एड्स आते हैं न्यूज़पेपर में, हो सकता है आजकल में ही भी निकले होंगे, मैंने आज का पेपर अभी तक देखा नहीं है, तो हो सकता है आजकल में, आज अभी क्या चल रहा है 17, नहीं अभी नहीं, ये जो जैसे डेट है ना 15 सितंबर, इससे 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले आने शुरू हो जाएंगे एड्स न्यूज़पेपर्स में। ऐसी 15 जून से पहले आने शुरू हो जाएंगे न्यूज़पेपर्स में एड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालता है अपने एड्स। तो हमें ये याद रखना है 15 जून यानी 2.5 महीने बाद फाइनेंशियल ईयर के 15%, 15 के बाद 30 ऐड कर दो, 30 ऐड कर दो तो 45%, 45 में फिर 30 ऐड कर दो तो हो गया 75%, 75% में फिर मैक्सिमम 100% में, वैसे तो 30 ऐड करते हैं बट ये समझ लो आप टिप है कि फिर 100% है 15 मार्च। इसके बाद हर एवरी 3 मंथ्स, 15 जून के बाद 3 महीने बाद 15 सितंबर, इसके 3 महीने बाद 15 दिसंबर, इसके 3 महीने बाद 15 मार्च में ये एडवांस टैक्स देना है। तो ये लिखा है, देखिए ये इसलिए रूल है, एनी टैक्स पेड टिल 31st मार्च विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। ओके, इसीलिए इसको एडवांस टैक्स दिया है। वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो लास्ट में देते हैं, बट इन्होंने कहा है कि 31st मार्च से पहले, तो उसको इन्होंने एडवांस टैक्स ही बोला है। फिर लिखा है नोट 2, इफ द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स इज द डे ऑन व्हिच द बैंक्स आर क्लोज्ड, देन द टैक्स पेयर शुड पे द एडवांस टैक्स ऑन द इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे। हाँ, ये तो सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है कि अगर लास्ट डे में वर्किंग हॉलीडे आ गई है तो नेक्स्ट डे वर्किंग डे माना जाएगा, वो पेनल्टी नहीं लगेगी उसके ऊपर। देखिए अब एक इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं। It is written that Mr. Kumar is a doctor, although Mr. Kumar is in a profession specified under 44AA1. 44AA1 भी presumptive के लिए, but he doesn't opt for the presumptive taxation scheme of 44ADA. Professionals के लिए 44ADA सेक्शन होता है और बिजनेसमैन के लिए 44AD होता है खाली। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि मैं जब इसको पढ़ रहा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को, तो 44ADA अडा अनिल धीरूभाई अंबानी ADA जो ग्रुप है ना, वो भी अडा के नाम से है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स, और खाली AD है तो इट इज फॉर बिजनेस पीपल। तो इस टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज 1 लाख की उसकी टैक्स लायबिलिटी आई है, निकाल की बन रही है इसकी। सो बाई व्हाट डेट ही शुड पे एडवांस टैक्स एंड हाउ मच, कैसे कैसे देगा, 1 लाख को आप डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए ये लिखा है, पंद्रह जून तक 15% देना है। 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 15 सितंबर को 45% आ जाना चाहिए, यानी कि कितना आ जाना चाहिए आपका 45, लेकिन 45,000 नहीं देगा, 45,000 है टोटल आ जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो 45,000 उसने दे दिया है, माइनस 15,000 पहले दे दिया है, तो 30,000 देगा यहाँ पर। 15 दिसंबर तक उसका 75% यानी 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी का 75% आ जाना चाहिए। सो 30,000 दे चुका है, सो माइनस 75,000 माइनस 30,000, सो ही विल पे 45,000 ओवर हियर एंड बैलेंस 100% 15 मार्च तक आ जाना चाहिए। तो यानी 75,000 यहाँ तक दे चुका है, ही विल पे 25,000 बाई 15 मार्च। सर अगर ये एक बिजनेस वाला बोले कि मैं जो एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, तो उसे देना पड़ेगा क्या? नहीं, लॉस वाले को नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है ना कि अगर आपको लगता है आपके बिजनेस में आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर पहुंचने वाली है, तब आपको पे करना है एडवांस। अगर आपका टैक्स 10,000 से नीचे आता है, फिर आपको पे नहीं करना है एडवांस टैक्स। फिर तो इकट्ठे जो बनेगा 5,000, 10,000, 5,000, 8,000, 6,000, वो फिर बाद में इकट्ठे ही दोगे आप टैक्स।
मतलब सर अगर मेरा एग्जाम्पशन सब लगा के मैं देखूं कि अगर मेरा 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा तो मैं ना दूं, और तब अगर फिर नहीं, हाँ, यस यस, ठीक है सर। ये। और देखो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि मैं हम लोग अपनी रिटर्न भरते रहे हैं इतने सालों से। कई बार ये होता है कि एकदम मार्च में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस पर्सन है, हो सकता है मार्च में बड़ी जबरदस्त सेल हो गई आपकी, और फिर 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी आ गई, तो आखिर के महीने हुई है ना। तो इतना मेरे को शुरू में तो थोड़ी तो मैं एस्टिमेट कर सकता था। आखिर में मार्च में मेरे पास प्रोजेक्ट आ गए इतने सारे। और कई ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो एक ही महीने में कमा लेते हैं। एक महीने में मार्च में इतनी उन्होंने 2-4 मोटी मोटी प्रॉपर्टीज बेच दी, अच्छी ब्रोकरेज कमा ली, तो उनकी 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी बन गई। और उनको थोड़ी पता था कि पूरे साल में मेरी इतनी लायबिलिटी बन जाएगी। ये कोई और लेक्चर चल रहा है क्या? सर भवानी सर वो कर रहा है क्या इंटर्नशिप फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप कर रहा है सर। अच्छा अच्छा, ओके। मैंने कहा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बारे में सुन रहा है सर। ओहो, अच्छा, ओके, वही मैं सोच रहा हूँ। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है एडवांस टैक्स जिनको पता है कि पिछले सालों से यार मेरी, जैसे बिजनेसेस को पता है जिसका टर्नओवर, जितनी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं इनके प्रॉफिट्स ही आते हैं 600 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो उनको तो पता ही है कि एडवांस टैक्स हमने पे करना ही पड़ेगा। 5,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं होगा इस बार, 4,000 करोड़ हो जाएगा। हाँ, कई ऐसी कंपनीज हैं अभी इसके अंदर, बहुत अच्छी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं, जैसे गेल वगैरह है या इंडियन ऑयल है, इनका लॉस में आया है कई कुछ करोड़, पिछले 1-2 साल से लॉस में आ रहा है। तो पता चल जाता है वो पहले क्वार्टर से ना कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं, तो उनको देने की जरूरत नहीं है। लॉस है तो फिर एडवांस टैक्स किस बात करेंगे। तो एक एस्टिमेशन हो जाता है। बहुत सारे प्रोफेशनल हैं। अब जैसे आपका ये फेमस एडवोकेट था राम जेठमलानी, अभी उसकी डेथ हुई है अभी कुछ महीने पहले। ही डाइड एट द एज ऑफ आई थिंक 98 ईयर्स, 98-99। Even at this age, he was very sought after lawyer. और अभी भी वो लोग कहते हैं कि 5-7 लाख रुपया रोज के कमाता था वो, अभी भी इतनी एज में, अभी 98-99 हो गई राम जेठमलानी। तो ऐसे लोगों को पता है ना, अब वो चाहे सीनियर सिटीजन है लेकिन वो प्रोफेशन में है, तो ये लोग देंगे, एडवांस टैक्स देंगे। अब लाइक ये मिस्टर अमिताभ बच्चन है, आजकल यंग हीरो से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ये लोग। इनके पास सबसे ज्यादा ऐड है, इनके पास इतनी पिक्चरें हैं, इतने इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको पता है ना हमारी इनकम यार कितने करोड़ों में होगी, तो इनको एडवांस टैक्स पे करना ही करना है। तो इनके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सारा इनका एस्टिमेशन लगा के वो अपने आप ही उनके बिहाफ पे सारा टैक्स वैक्स पे करते रहते हैं। तो इट्स लाइक दैट। थोड़ा बहुत अगर आपका ऊपर नीचे होता है, जैसे साल के आखिर में 10-12 हजार 15 हजार, फिर देखिए इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपको पता है मेरी सैलरी जो है 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लोगों की सैलरीज हैं, तो उनको पता है कि इतनी टैक्स लायबिलिटी बननी है 10,000 से ऊपर, तो दे आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो खुद पे करें, या जो बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो देखिए करने को खुद भी कर सकते हैं आप, साइट पे ऑन करके आप पे कर दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इतना जो आदमी बिजी है, सीईओ लेवल का बंदा है, अब वो इतना टाइम नहीं होगा उसके पास, तो वो एक सीए को क्या है कि सीए को फीस ही तो देगा, वो सारा उसका करता रहेगा। कब उसका एडवांस टैक्स जाना है, कब उसके इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो वो उसको दे देते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानर्स को या सीएस को, सारा उनके बिहाफ पे काम करते रहते हैं। तो अब जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है उतने ज्यादा प्रोफेशनल्स को, सीएस को काम मिलता है। अब जैसे जीएसटी हम पढ़ रहे थे, जीएसटी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, इनको आजकल सीएस वगैरह को काम बहुत आ गया इनके पास। जो छोटी बिजनेस फर्म भी है, अब वो नहीं कर सकते इतना हर महीने, इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतना सारा अपलोड करना, मैचिंग करना, रिकॉन्सिलिएशन करना। तो आजकल जितने भी ये सीएस हैं, इन सबकी चांदी हो गई है, इनके पास बहुत काम है, इनके पास फुर्सत नहीं है। राइट। और वो सीएस भी क्या काम कराते हैं, जो बड़े सीएस हैं वो सारे अपने इंटर्न्स रख लेते हैं, जो सीएस में इंटर्नशिप जरूरी होती है, वो सारे इंटर्न्स करते रहते हैं सारा काम ये उनके बिहाफ पर।
और फ्री में उनको काम करने को बंदे मिल जाते हैं। सही कह रहा हूँ? यस सर, आर्टिकल शिप करते हैं वो लोग, आर्टिकल शिप करते हैं। तो आजकल बहुत काम है इनके पास। सो ज्यादा पे भी नहीं करते, अराउंड 3 to 4,000 पर मंथ। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे इसमें बढ़े हम। सो एक और इसमें रूल 1 मिनट देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लिखा है, एज पर रूल 125 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962, और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर दैट इज अ कंपनी, अगर कंपनी है शैल पे टैक्सेस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ द ऑथराइज्ड बैंक। देखिए कंपनीज के लिए ऑनलाइन फाइल करना रिटर्न्स इज अ कंपल्शन। सिमिलरली एडवांस टैक्स भी पे करना कंपल्शन है, डिजिटल सिग्नेचर्स होने उनके लिए कंपल्शन है। बट टैक्स पेयर्स अदर देन अ कंपनी who are required to get their accounts audited, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आपके अकाउंट्स को ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, कल हमने पढ़ा था अगर 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको अकाउंट अपने ऑडिट कराने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा ऑडिट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ जाती है। अब बड़े सिटीज में तो 1 करोड़ की टर्नओवर आम बात है, हो जाती है बड़े सिटीज में, एक शॉप की भी। तो शेल पे टैक्सेस थ्रू द, इनको भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड से अपना टैक्स पे करना होता है यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ द ऑथराइज्ड बैंक। एनी अदर टैक्स पेयर कैन पे टैक्स ईदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय फिजिकल मोड, दैट इज बाय डिपॉजिटिंग द चालान एट द रिसीविंग बैंक। वैसे तो देखिए मैं अपनी बात बताऊं, मैं पिछले 15 साल से मुझे याद है कि मैं सारी ऑनलाइन ही रिटर्न्स फाइल करता हूँ। हार्डली मैंने कभी 15 साल में कभी इनकम टैक्स के ऑफिस को विजिट किया हो। पहले क्या होता था, हमें इनकम टैक्स ऑफिस में जा करके अपनी रिटर्न सबमिट करनी पड़ती थी, ऑफिसर से मिलना पड़ता था या बाबुओं से मिलना पड़ता था, पैसे खिलाने पड़ते थे। इवन मैं, बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन सम बिजनेस आल्सो, इन ट्रेडिंग बिजनेस आल्सो, इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, तो हम सेल टैक्स रिटर्न के लिए भी फाइल करने जाते थे और छोटी से छोटी बात पे हमें नोटिस भेज दिया जाता था और इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने हमें जाना पड़ता था, बड़े हमें उनकी मिन्नत करनी पड़ती थी। बीच में हमें सीए को या टैक्सेशन लॉयर को रखना पड़ता था, वो हमसे फीस लेता था। बीच में जो टैक्सेशन लॉयर होता था वो बोलता था हमने साहब को भी देने हैं पैसे, उसमें मेरी फीस भी, और साहब इतने पैसे मांग रहे हैं, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत सारी करप्शन ब्रीडिंग थी अगर फिजिकल चीज में। अभी क्या है कि काफी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आने से करप्शन भी कम हुआ है और थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। और अभी रिसेंटली मिस्टर मोदी ने अभी स्पीच दी थी, अभी 3-4 दिन पहले, 15 अगस्त से पहले उन्होंने क्लियरली बोला है कि आगे भी the roadmap is that there will be in every case, whether it is GST, whether in direct taxes, he wants totally faceless transactions, so that a person do not have to visit any branch, do not have to even see the face of any official and all. Even अगर कोई नोटिस भी भेजा जा रहा है, even आप अपील भी कर रहे हो, everything will be faceless mode. तो उसको और ज्यादा इसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, तो which is very good. Because otherwise, taxation का मतलब होता था harassment of businesses, harassment of common man. तो ये इन्होंने अच्छा किया है कि कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करना है आपने जो भी पेमेंट्स वगैरह करने हैं, और फाइल्स भी रिटर्न्स जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करें, और जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में देना है। लेकिन एनी अदर टैक्स पेयर अभी रूल ये बनाया हुआ है, इट कैन पे टैक्स आइदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय फिजिकल मोड, दैट इज बाय डिपॉजिटिंग द चालान एट द रिसीविंग बैंक में। जो इनके बैंक्स होते हैं ऑथराइज्ड बैंक, उसमें आप चालान से पे कर सकते हो, जैसे स्टेट बैंक सबके लिए है ही गवर्नमेंट के पेमेंट्स के लिए, तो वहां पर जाके चालान जाइए ब्रांच में। लेकिन अब वही है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, कुछ लोगों को यही होता है, जैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो वो अभी भी चाहते हैं कि हम लोग, अभी अगर हम बैंक वालों से बात करें, आई अटेंडेड वन ऑफ द सेमिनार बाय बैंक पीपल, तो उसमें बैंक के लोग बोल रहे थे, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोल रहे बेसिकली हमारे बैंक्स में ज्यादा सीनियर सिटीजन ज्यादा आते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें अभी भी वही आदत है, वो पासबुक लेके आते हैं, एक एक एंट्री करवाते हैं उसके अंदर,
तो बिकॉज दीज पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, और कई लोगों को विश्वास भी नहीं होता है ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन में, वो सोचते हैं यार कुछ ना कुछ हैकिंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में और थोड़ा सा ये है, लिखा हुआ है कि एडवांस टैक्स कैन बी पेड बाय द टैक्स पेयर ईदर ऑन हिज ओन अकाउंट और इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि आप आइदर ऑन हिज ओन अकाउंट का मतलब है आप अपने आप से भी एडवांस टैक्स पे दे सकते हैं अपना असेसमेंट करके, या असेसिंग ऑफिसर ने आपको कोई नोटिस भेजा है कि भाई आपकी टैक्स लायबिलिटी हमें ज्यादा लग रही है तो आप एडवांस टैक्स पे करिए। The taxpayer who is liable to pay advance tax is required to estimate his current income and pay advance tax on his own account. On his own account means on his own accord, basically. अपने आप से उसको estimate करना है अपनी income का. In such a case, he is not required to submit any estimate or statement of income to the tax authority. उसको बीच में अपने टैक्स की स्टेटमेंट नहीं देनी है, अपनी इनकम की स्टेटमेंट नहीं देनी है, मैंने कितना टर्नओवर है, बस अपने आप से वो टैक्स जमा कराता रहे। अगर ज्यादा भी जमा करा दिया है उसने तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा उसका, जब फाइनल उसकी रिटर्न्स बनेंगी फाइनेंशियल ईयर की तो वो एडजस्ट हो जाएगा या रिफंड भी आ जाएगा उसके पास। तो सरकार का कहना यह है कि आप अपने टर्नओवर के हिसाब से अपना एडवांस टैक्स बीच बीच में पे करते रहिए, जो जो डेट्स आपको बताएंगे। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स एज द केस में बी, if there is a change in the tax liability, then the taxpayer can revise the quantum of advance tax in the remaining installment or installments and pay the tax as per revised estimate. तो वही चीज लिखिए जो हम बात कर रहे थे, अगर पहली दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद उसको लगता है कि यार नहीं नहीं मेरा तो टैक्स बहुत कम बनने वाला है, तो चौथी इंस्टॉलमेंट कम कर दे या ना दे या और ज्यादा करके पे कर दे, तो जैसे भी है वो रिवाइज कर सकता है अपना क्वांटम ऑफ एडवांस टैक्स। Then tax can be computed on the current income estimated by the taxpayer at the rates in force during the financial year. From the tax so computed, tax deducted or collected at the source will be deducted and balance tax payable will be used to compute the advance tax liability. चलिए ये तो चीज हो गई। जैसे इसके अंदर एक ये एक एग्जाम्पल दिया है, कोई मिस्टर राणा है, वो मिस्टर आर्किटेक्ट हैं, वो नॉर्मल वे में अपना टैक्स भरते हैं, ही डजंट ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इनकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट इन्होंने की है 1 लाख रुपए की इनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इन्होंने 15 जून तक अपना 15,000 15% दे दिया टैक्स, एडवांस टैक्स जमा करा दिया। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट वन ऑफ हिज क्लाइंट पेड फीस ऑफ 1,80,000। अगस्त में इनके क्लाइंट ने इनको 1,80,000 की फीस दी है, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस काट के दी है, 20,000 रुपया उन्होंने टीडीएस काट लिया। सो कितना इनको टैक्स एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है? क्या ये 20,000 रुपीज उसको एस्टिमेट करेंगे? तो इसमें देखिए क्या है, ये थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ, हिज टैक्स लायबिलिटी विदाउट टीडीएस अमाउंटेड टू 1 लाख। In the month of August, he received 1,80,000 after deduction of 20,000. Hence, he got a tax TDS credit मिल गया इनको 20,000 का. So his tax liability after granting of credit of TDS will come out to 80,000. So in second installment by 15 September, he should pay 45% of his revised tax liability. So thus he should pay 36,000. That is 45% of 80,000. तो इनकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की इन्होंने लगाई थी, क्योंकि 20,000 इन्होंने इनका टीडीएस किसी ने काट दिया है इनके क्लाइंट ने, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी समझो 80,000 हो गई। तो 80,000 के हिसाब से 45% लगाएंगे 15 सितंबर को, और क्योंकि 15,000 ऑलरेडी दे चुके हैं तो ये 36,000 में से 15,000 माइनस करके 21,000 रुपया ही जमा कराएं।
और उसके आगे भी उसी हिसाब से चलेगा। ये चीज है। क्या ही बात समझ में? अगर किसी का टीडीएस कटा है तो टीडीएस काट करके वो क्रेडिट हो जाएगा उसका, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसमें जीएसटी में, इनका टैक्स क्रेडिट हो गया तो उसको माइनस करके वो फिर बाकी इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो उसके हिसाब से परसेंटेज लगा ले, वो 15%, 45%, 75% और 100%। ठीक है? यस सर। चलिए, अच्छा ये एक और इसी तरह का इलस्ट्रेशन है। मिस्टर राणा इज एन इंजीनियर, ऑल्दो मिस्टर राणा इज इन प्रोफेशन स्पेसिफाइड। बताना इसमें देखिए ये, हाँ ये मैं ऊपर एग्जाम्पल, ये कोई आर्किटेक्ट हैं, इनकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीस बनती है, इन्होंने एस्टिमेट की है साल में। तो उसके हिसाब से इन्होंने 15 जून को अपना 15,000 रुपया डिपॉजिट करवा दिया एडवांस टैक्स। इस बीच में इनको एक क्लाइंट से पेमेंट मिला 1,80,000 का, लेकिन उसने 20,000 रुपया टीडीएस डिडक्ट कर दिया इनका। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या whether he should take cognizance of this TDS? Yes, the answer is yes. बेसिकली क्या होगा, इन्होंने जो एस्टिमेट किया था 1 लाख रुपीस की टैक्स लायबिलिटी, तो 20,000 रुपीज ये टैक्स क्रेडिट में ले लेंगे, क्योंकि ये वो ऑलरेडी इनका क्लाइंट काट के जमा करा चुका है। 15 जून तक तो इनकी 1 लाख थी, तो उन्होंने 15,000 जमा करा दिया। अब इनकी नेक्स्ट लायबिलिटी बन रही है 15 सितंबर को, जब इन्हें 45% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी जमा करानी है एज एडवांस टैक्स। तो ये क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 20,000 इनकी टैक्स लायबिलिटी ये मान के चल रहे हैं मेरी 80,000 हो गई अब साल में। 80,000 का 45% आपको जमा कराना है 15 सितंबर तक। ये है ना, देखिए 15 सितंबर तो को 45%, तो 80,000 का 45% कितना होता है? 36,000। 36,000 इनको जमा कराना है यहां पर। तो 36,000 में 15,000 रुपया ये ऑलरेडी जमा करा चुके हैं 15 जून को। तो 36,000 माइनस 15,000 कितना हो गया, वो जमा कराएंगे ये। 36,000 माइनस 15,000, 21,000 यहाँ पर जमा कराएंगे। फिर 15 दिसंबर तक, उसके बाद अगर कोई और चेंज नहीं होता तो 15 दिसंबर तक 75% जमा कराना है इनको। तो 80,000 ये मान के चल रहे हैं हम उनकी टैक्स लायबिलिटी इनटू 75,000 कितना हो गया इसका 80,000 का। तो यहाँ पर 60,000 रुपया इनका डिपॉजिट हो जाना चाहिए एडवांस टैक्स। तो 60,000 में 36,000 रुपया इनका आ चुका है। तो 60,000 माइनस 36,000 ये हो गया 24,000 यहाँ जमा कराएंगे। ठीक है जी। फिर 15 मार्च तक 80% आ जाना चाहिए, यानी कि 80,000 रुपया 80,000 आ जाना चाहिए 100%। तो कितना जमा करा चुके थे, 75,000 कितना हुआ था 60,000। तो 60,000 यहां तक आ चुका है इनका। तो बैलेंस 20,000 यहाँ डिपॉजिट कराएंगे ये 15 मार्च को। क्लियर है अभिजीत? यस सर। ओके ओके। तो बेसिकली ये 44 एडी और एडीए के अंदर एसएससी की जो बात हो रही है उसमें कौन, मतलब केवल बिजनेसेस आते हैं? 44 एडी में तो बिजनेसेस आते हैं और 44 एडीए में आते हैं प्रोफेशनल्स आते हैं। तो रूल ये है कि जो 44 एडी और एडीए में आते हैं, यानी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से भर रहे हैं अपना, उनको सिर्फ 100% 15 मार्च को डिपॉजिट करना है एडवांस टैक्स। इससे पहले 15%, 45%, 75% ये जमा नहीं कराना उनको सिर्फ 15 मार्च तक इकट्ठे जमा कराना, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हैं। बस ये फर्क है। चलिए अब हम आ रहे हैं नीचे। एक और इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि 1 मिनट देख लेते हैं जल्दी से। मिस्टर राणा इज एन इंजीनियर, ऑल्दो मिस्टर राणा इज इन प्रोफेशन
is specified under section 44 AA1 but he doesn't opt। इन्होंने बार बार ये दिया है कि इसको ऑप्ट नहीं कर रहा है। So his tax liability amounts to 2 lakh rupees। He has paid advance tax of 30,000 by 15 June, यानी 15% दे दिया 2 लाख का। In the month of August, he got a contract from a multinational company. After incorporating the receipts of the new contract, his revised tax liability amounts to 3 lakh। In this case, how much advance tax? अच्छा, अगस्त के बाद इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, इन्होंने रिवाइज करी कि यार मेरा तो टैक्स लायबिलिटी 3 लाख की बनने वाली है, तब कितना पे करेंगे एडवांस टैक्स? तो पहले 2 लाख के हिसाब से ये 15% एक इंस्टॉलमेंट तो दे चुके हैं, अब इनकी रिवाइज टैक्स लायबिलिटी हो गई 3 लाख रुपया। तो अब कैसे करेंगे? तो यहां लिखा है, देखिए, इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाय 15 सितंबर ही शुड पे अप टू 45,000 ऑफ हिज रिवाइज्ड लायबिलिटी, thus he should pay 45% of 3 lakh, बनता है 1,35,000 by 15 सितंबर। he has already paid 30,000 hence he should pay। बस कुछ नहीं है। उसके बाद रिवाइज्ड लायबिलिटी इनकी 3 लाख हो गई, तो 3 लाख का 45% लगा लें, उसमें जो पहले पे किया हुआ है वो माइनस कर लें 30,000, तो वो माइनस कर लिया, 1,35,000 में 30,000 माइनस कर दिया तो 1,05,000 रुपया पे करेंगे। तो उसके बाद वो 3 लाख के हिसाब से चलेगी बाकी लायबिलिटी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, जो इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट होती है, अगर उस डेट पे कोई इनकम जनरेट होती है बिजनेस में या प्रोफेशन में, तो वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के टैक्स लायबिलिटी के लिए। मतलब आप कह रहे हो 15 मार्च के बाद अगर कोई और इनकम जनरेट होती है? सर, अगर 15 मार्च को ही आती है, मतलब उस दिन टैक्स हम पे कर रहे हैं, लेकिन 15 मार्च को ही हमारी इनकम जनरेट होती है, हाँ करेक्ट, तो उस दिन की टैक्स लायबिलिटी क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अभी तो वो अपने अकाउंट्स को फाइनल करेगा ना, ऑडिट वगैरह करवाएगा अकाउंट्स को, अपने पूरा बैलेंस शीट्स बनवाएगा, तो उसके बाद उसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी लास्ट डेट होती है उसकी 31 जुलाई जैसे होती है, तब बाकी बैलेंस पे करेगा। ये तो इन्होंने एस्टिमेशन के हिसाब से कहा है कि 100% देनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद भी अगले 15 दिन में उसकी इतनी इनकम हो गई कि उसमें एक्स्ट्रा टैक्स जो बना है या एग्जैक्ट ऑडिट करके जो टैक्स आया है वो टैक्स बैलेंस पे करेगा। अगर उसका निकलता है तो वो रिफंड लेगा। इट इज लाइक भूल चूक लेनी देनी, यू नो, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि भूल चूक लेनी देनी। अभी तो उसने अपने एस्टिमेशन के हिसाब से 15 मार्च तक दे दिया, लेकिन अभी उस फाइनेंशियल ईयर में 15 दिन और बचे हैं, और ये भी उसने एग्जैक्ट अपना कैलकुलेशन नहीं किया है। अकाउंट्स तो आर सपोज टू बी प्रॉपर्ली मेड एंड प्रॉपर्ली ऑडिटेड। ऑडिटर ने उसमें बाद में कहा कि नहीं आपकी तो टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा बन गई है, तो ही विल पे फर्दर टैक्स आफ्टर दैट फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर बाय 31st of July, एंड स्पेशली फॉर कंपनीज के तो जून जुलाई तक आते हैं आपके रिटर्न्स, और कईयों के मैंने कहा है ना अभी 31 मार्च के अभी तक नहीं आए हैं, कई कंपनीज के डिले हो गया किसी वजह से, लॉकडाउन में उन लोगों को अभी इस साल ना गवर्नमेंट ने और टाइम दे दिया है कि आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स ने, हमने अभी तक फाइल नहीं की अपनी रिटर्न्स 31 जुलाई, क्योंकि अभी टाइम है, अक्टूबर नवंबर तक टाइम दे दिया अभी, तो अब हमारे को भी लग गया कि यार भर लेंगे, आराम से कर लेंगे, जल्दी क्या है। तो अगर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो लोग देंगे। तो कई बार असेसिंग ऑफिसर भी आपको नोटिस भेज सकता है इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, कि उसको लगता है कि नहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन रही है, तो वो आपको भेज सकता है कोई भी ऑर्डर या नोटिस, तब भी आप उसको पे करेंगे एडवांस टैक्स। देखिए एक सिंपल एक एग्जांपल दिया है हमने एक इंडिविजुअल के लिए। Compute the advance of amount of advance tax to be paid by Mr. Kapoor, who is aged 35 years, from the following details. For financial year 1920, taxable business income is only 10,84,000. He has earned interest on debenture of 9,000. उसका TDS भी कटा है इसमें 1,000 रुपीज का। NSC में इसने इन्वेस्टमेंट किया है 80,000 का, एंड ट्यूशन फीस पे की है इसने अपनी सन की 1333। So it is an individual। तो ये बड़ा सिंपल केस हमने वैसे ही दिखाया आपको। टैक्सेबल बिजनेस इनकम इसकी हो गई 10 लाख
84,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ये इंटरेस्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 10,000 की इनकम हुई है जिसमें 9,000 उसको नेट मिला है, 1,000 उसको उसका टीडीएस कट गया इंटरेस्ट में, तो 10,000। तो ग्रॉस इनकम हो गई इसकी, इन दोनों को ऐड कर दिया 10,94,000। इसमें जो उसने एनएससी में इन्वेस्ट किया वो 80C में आता है। 80C में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे जिसकी लिमिट है 1.5 लाख। सो एनएससी इज पार्ट ऑफ दैट एंड ट्यूशन फीस भी उसमें आती है। सो 80,000 प्लस 1,333 ऐड होके ये डिडक्ट हो जाएगा। स्ट्रेट अवे इट कैन बी डिडक्टेड। सो उसकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गई 10,12,667। रिबेट 87A का मिलता है 12,500 का, वो सिर्फ 5 लाख की इनकम के ऊपर मिलता है, तो उसको नहीं मिलेगा। 87A में 12,500 का रिबेट मिलता है, जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक की हो तो इसको नहीं मिलेगा, बिकॉज इसकी 5 लाख से ऊपर इनकम है नहीं। सो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट, ये उसी स्लैब लगा के इन्होंने टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। जैसे पहले 2.5 लाख के ऊपर 0, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, अगले 5 लाख के ऊपर 20%। तो उस तरह से ये नीचे इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। 1,16,300 रुपया इसका टैक्स लायबिलिटी बनी है। इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके ये टैक्स लायबिलिटी बन गई बिफोर टीडीएस 1,20,952। इसमें टैक्स इसका ऑलरेडी कटा हुआ है 1,000 रुपया, टीडीएस कटा हुआ है, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 1,19,952 आफ्टर टीडीएस। ये स्लैब रेट लगा के इसको बनाया है। तो ये 1,19,952 को ही सपोज टू पे बाय दिस थिंग ओनली, के 15% इसको 15 जून तक। अब वही आप कहोगे कि यार ये तो साल के आखिर में पता चलेगा, बट गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिए हैं कि आपको एस्टिमेशन, तब भी रफ एस्टिमेशन करना है अपना। है ये बड़ा टफ काम, बट वही है, इंडिविजुअल्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है ये कि भाई अपने पूरे साल की इनकम का हम कैसे एस्टिमेशन करेंगे। और स्पेशली अगर बिजनेस इनकम है और अगर बिजनेस छोटा बिजनेस है, उसमें देखिए एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़े बिजनेसेस में तो आपको लास्ट ईयर्स का एस्टिमेशन है। अगर आपका नया बिजनेस है और छोटा बिजनेस है, यू डू नॉट नो यार कितना टर्नओवर होगा, और टर्नओवर के हिसाब से भी प्रॉफिट है या नहीं है। कई बार आप बहुत कम मार्जिन पे काम करते हो, तो टर्नओवर से कई बार एस्टिमेशन नहीं हो सकता। कई बार कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका टर्नओवर सिर्फ 10 लाख रुपए, और तब भी वो अच्छा उसमें प्रॉफिट दे रहे हैं। 10 लाख या 25 लाख के टर्नओवर के ऊपर उनका 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया। कई बिजनेसेस हैं कि 1 करोड़ का टर्नओवर है और प्रॉफिट 2% पे 1% पे काम कर रहे हैं। ये फिर भी एनीवे जो रूल इज रूल, तो इन्होंने 15%, जो 1 लाख समथिंग की टैक्स लायबिलिटी है, तो 15% उसका 1,19,952 का 15% पे करेंगे 15 जून तक, 45% पे करेंगे एनीवे। तो इस हिसाब से लिखा हुआ है। चलिए 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। एज पर सेक्शन, विच सेक्शन एवरी पर्सन हैज टू पे एडवांस टैक्स, जिसकी लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है, ये सेक्शन कहलाता है सेक्शन 208 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। अगर आपको याद होता है तो ठीक है। तो सेक्शन 208 में a person is supposed to pay advance tax if his tax liability is likely to be above 10,000 rupees. Then question number 2, true and false, just at the bottom where my cursor is there. A resident senior citizen not having any income from business and profession is not liable to pay advance tax. True or false? Yes, true. True है, yes, true. Then question number 3. All taxpayers other than presumptive income wale, AD or ADA wale, are required to pay 45% of the advance tax by which date? 45% कब तक पे करना है? 15 जून, 30th, 15 September, correct? September, 15 September, yes. Correct answer is C, yes. Good. And fourth, just at the extreme bottom, taxpayers opting for presumptive taxation scheme of 44 AD are required to pay advance tax by 15 June. Zero.
नील, यस, डी नील, डी नील, क्योंकि उनको इकट्ठा बस 15 मार्च तक ही पे करना होता है एडवांस टैक्स 100%. सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज यस, डी नील. Question number 5, true and false. Taxpayers other than a company who are required to get their accounts audited have to pay tax by physical mode, that is by depositing the challan of the receiving bank. True or false? False. जिनको false है, हाँ, क्योंकि वो physical mode से नहीं दे सकते, they have to pay by electronic mode. So answer is yes, B, false. And question number 6, ये भी ट्रू एंड फॉल्स है. ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं अभी. सेक्शन वेक्शन वाले हैं ये, मैं अब इसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर अंडर सो एंड सो सेक्शन रिक्वायरिंग द टैक्स पेयर टू पे एडवांस टैक्स ऑन हिज करंट ईयर्स इनकम मे बी पास ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और नॉट लेटर देन. असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो मैक्सिमम कौन सी डेट तक उसको पे करना है, इसका आंसर है सी, लास्ट डे ऑफ फरवरी तक. ये अब मैंने आपको बताया नहीं था. एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, जो वो सेक्शन था ना कि असेसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर दे सकता है टैक्स पेयर को, वो कब तक दे सकता है? वो लास्ट डे ऑफ फरवरी, 28 फरवरी तक उसका ऑर्डर आ सकता है. फिर तो मार्च ही रह गया फाइनेंशियल ईयर में, अब क्या ऑर्डर देगा? तो लास्ट डे ऑफ फरवरी तक उसका ऑर्डर आ सकता है, मे बी पास्ट बट नॉट लेटर देन लास्ट डे ऑफ फरवरी. फरवरी के बाद तो उसका ऑर्डर नहीं आएगा. ये एक रूल है. देन कम्स योर 8th क्वेश्चन. ये भी ट्रू एंड फॉल्स है. After making payment of first, second, third installment of advance tax, if there is a change in the tax liability, then the taxpayer can revise the quantum of advance tax in the remaining installment and pay the tax as per revised estimate. True or false? True. अगर आपकी टैक्स ट्रू है, हाँ, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी चेंज होती है तो आप रिवाइज्ड एस्टिमेट से फिर पे कर दीजिए. यस, ट्रू. एज सिंपल एज दैट. एक ये देखिए फॉर्म नंबर है. ऑन रिसीप्ट ऑफ द notice of assessing officer to pay advance tax if the taxpayer's estimate is lower than the estimate of the assessing officer, then he has to send intimation in form number. अगर assessing officer का कोई ऑर्डर आया है आपके पास और आपका एस्टिमेट उसके एस्टिमेट से कम है, तो आपको ना उसको एक इंटीमेशन देनी पड़ती है फॉर्म नंबर में कि नहीं सर, आपका ऑर्डर गलत है, हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी नहीं बन रही, हमारा एस्टिमेट इस हिसाब से आता है. तो वो कौन सा फॉर्म है? ये डी इसका आंसर है. फॉर्म नंबर 28A होता है. एनीवे हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप रिमेंबर करें, बट ये इसका आंसर है 28A फॉर्म होता है. देखो जो लोग रेगुलर काम करते हैं ना, फिर वो उनको फिर ये फॉर्म नंबर याद हो जाते हैं. जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है ना सेक्शन, तो उनको फिर याद हो जाते हैं फॉर्म. जैसे सेक्शन 80C है, सेक्शन 80D है, रेगुलर सेक्शंस हैं, तो उनके नाम इसलिए हमको सपोज they are supposed to be remembered. An order passed by the assessing officer to pay advance tax cannot be revised by him. True or false? नहीं, ये false है. वो रिवाइज कर सकता है उसको ऑर्डर को, क्योंकि उसके लिए फॉर्म बने हैं. अगर उसका ऑर्डर भी आया है तो आप उसके लिए अपील भी होती है, उसके लिए आप दूसरा फॉर्म भर के भेज सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका ऑर्डर आ गया तो फाइनल है. तो इट इज फॉल्स. कैनॉट बी रिवाइज्ड बाय हिम, इट कैन बी रिवाइज्ड बाय हिम. There are proper procedures. वो हमने अपने कोर्ट्स में रखा नहीं है. There are proper procedures कि आप इनकम टैक्स का नोटिस आया है या आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया है, आप उसकी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास कहाँ अपील कर सकते हो. There are appellate bodies. आपके केसेस इनकम टैक्स के अलग केसेस चलते हैं, तो those procedures are also there. So ये हो गया हमारा एडवांस टैक्स. Okay, fine. Yes, sir. तो ये इसलिए जरूरी था ये टॉपिक, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस पर्सन, वी मस्ट नो कि एडवांस टैक्स का प्रोविजन होता है. सो टुमारो वी शुड नॉट कट अ सॉरी फिगर कि हमको पता ही नहीं था उसका, बिकॉज लॉ ये बोलता है इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज. Fine.
अब मैंने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। मैं जनरल ओवरऑल कोर्स में से थोड़े बहुत, उसमें जीएसटी के क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन और दूसरे क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाह रहा हूं आपको, अभी हमारे पास और 20 मिनट हैं, वो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कहाँ गया मेरा? ये मुझे मिल गए थे, मैंने पहले से टाइप किए हुए थे ये क्वेश्चन आंसर्स। ये देखो मैंने सब टाइप किए हुए हैं, 8-10 पेजेस के क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए मेहनत की हुई है, ऐसा ही नहीं कह सकते आप हम मेहनत नहीं करते। तो ये देखिए मैंने आपका क्विज अगस्त 2020 का इसको बना दिया है, पीजीडीएम ट्राइमेस्टर 4। क्वेश्चन नंबर 1, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगता है 4% का, इज इट लेविएबल इन द केस ऑफ ए इंडिविजुअल, बी एचयूएफ, सी कंपनी एसएससी, डी ऑल एसएससीज, या ई नन ऑफ द अबव? ये आंसर बताइए। सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर लगता है, एचयूएफ के लगता है, या कंपनीज के ऊपर भी लगता है, या ऑल एसएससी में फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एवरीबॉडी कुछ भी हो उसके ऊपर आ जाए? डी होगा सर, ऑल। करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। सो इट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर एक के ऊपर लगेगा भैया, इसका तो पैसा देना ही देना है। चाहे आपका हाँ कैपिटल गेन हो, ये भी है इसमें, कैपिटल गेन हो आपका, उसके ऊपर भी लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इनकम टैक्स हो इंडिविजुअल के ऊपर, उसके ऊपर भी लगता है। कंपनी के ऊपर भी जो फाइनल जो भी टैक्स बनेगा हर एक के ऊपर लगेगा, ये तो फ्लैट रेट है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द राइट ऑप्शन। A, under Income Tax Act, only legal income is taxable. B, only illegal income is taxable. C, taxability of legal income is different from illegal income, मतलब दोनों का टैक्स रेट शायद अलग अलग है। और D कहता है both legal and illegal income are taxable. E, none of the above. इलीगल इनकम का मतलब है आपकी कोई इनकम है, जैसे कोई गैम्बलिंग है या कोई सट्टा है विच इज बैंड। फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्रिकेट मैच के ऊपर बैटिंग करते हो, वो बैन है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। अगर उससे आपकी कोई इनकम हुई है, आप पकड़े गए हैं और आपकी इनकम पता चली है, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर उसमें तो बहुत ज्यादा है, चार्जेस भी लगेंगे सर उसमें, तो जो भी मतलब टैक्स रेट होगा वो लगेगा। यस सर। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? ओनली लीगल इनकम इज टैक्सेबल, या इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है क्या नहीं, और इज टैक्सेबल, या सी हो सकता है सर, सी हो सकता है सर, सी हो सकता है। हाँ देखिए, जब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। बेसिकली टैक्स रेट तो हर एक के अलग अलग हुए हैं, कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग है, हाउस इनकम का अलग है, वो अलग हो सकता है, फिर स्लैब्स भी हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि टैक्सेबिलिटी ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम इलीगल इनकम, बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बोथ लीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। क्योंकि देखो रूल ये है, अगर आपकी इलीगल इनकम है, पूरी इनकम भी आपकी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, और जो आपने पीछे इलीगल इनकम, अगर आपको पता चला आप 8-10 साल से इलीगल इनकम कमा रहे थे, उसका भी वो तो आपसे वसूल नहीं कर सकते जो आपने कंज्यूम कर लिया, बट उसका टैक्स तो टैक्स अथॉरिटी कहेंगे भैया उसका टैक्स तो निकाल ही देंगे आपके ऊपर, कहेंगे उसका टैक्स दे दे भैया हमारे को। तो उससे आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो टैक्स आपसे वसूल नहीं होगा, तो आपकी प्रॉपर्टीज ले लेंगे, उससे टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स अथॉरिटी के पास इतनी पावर है कि आपकी प्रॉपर्टीज को बेच करके वो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं कि भैया, इसलिए कहा जाता है, कहावत है, देयर इज 2 थिंग्स आर सर्टेन इन लाइफ, टैक्सेस एंड डेथ। डेथ इज सर्टेन, दोस whoever has taken birth will die, but the timing is uncertain. Similarly tax is certain. टैक्स अथॉरिटी वाले अगर पिछले 10 साल का 20 साल का भी अगर उनका टैक्स निकलता है तो वो निकाल लेंगे आपसे। सो द आंसर इज बोथ लीगल एंड इलीगल इनकम आर टैक्सेबल। क्या रेट है हम अभी उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is an exempted income in financial year 1920? exempted income कौन सी रही है अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 में? डिविडेंड्स फ्रॉम
cooperative society, dividends from a foreign company, dividends from an Indian company up to 10 lakh rupees in a financial year, dividends from an Indian company irrespective of the amount, none of the above. None of the above. Exempted dividends exempted हैं. डिविडेंड्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, लेकिन सी इज राइट. इंडियन कंपनी के जो डिविडेंड आपको मिलते हैं शेयर्स वगैरह से, सर वो तो चेंज हो गया ना, अब 1 लाख रुपए हो गया है वो, शायद 10 लाख की जगह. नहीं 10 लाख है. 1 लाख हो गया. 1 लाख तो वो है 9 से 10 लाख है. हाँ, क्योंकि 1 लाख है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. 1 लाख तक वो फ्री है, टैक्स फ्री है. 1 लाख रुपए तक अगर लॉन्ग टर्म गेन होता है आपको शेयर से, जैसे 1 साल के बाद आप बेचते हैं अपने शेयर्स, तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. उसमें 1 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री है. डिविडेंड्स जो है वो 10 लाख तक टैक्स फ्री है 1 साल में. सी होगा सर इसका. सी है इसका आंसर. क्योंकि फॉरेन कंपनी के डिविडेंड्स दे आर ऑल टैक्सेबल, उसमें 10 लाख की लिमिट नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ और रूल हैं, टैक्सेबल हैं, लेकिन इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है, इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलते हैं आपको 10 लाख तक टैक्स फ्री, एग्जेम्प्टेड है. एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाती है. एग्जेम्प्टेड इनकम मींस टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम. इसको मैं बल्कि और थोड़ा ना कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम करता हूँ. ठीक है, टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम. हाँ, ये जो 10 लाख का भी जो रूल आया ना, ये और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रूल आया, ये अभी एनडीए गवर्नमेंट में आया, मिस्टर मोदी जी के कार्यकाल में आया. ये 2-3 साल पहले आया. इससे पहले 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी एंड चिदम्बरम साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इन्होंने रूल बना दिया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टोटली टैक्स फ्री. तो आप अगर देखें हमारे स्टॉक मार्केट का एक हिस्ट्री देखें कि 2004 से और अभी 2015 तक 16 तक जो स्टॉक मार्केट ने छलांग लगाई है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड. वो इसलिए लगाई है कि बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वर टोटली टैक्स फ्री एंड पीपल लाइक राकेश झुनझुनवाला, हु इज कंसिडर्ड टू बी द बिग बुल का नाम दिया है उनको स्टॉक मार्केट में. ही इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया. जैसे वॉरेन बफेट वर्ल्ड के हैं, तो हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी हैं. उनका ये कहना है, अपने इंटरव्यूज में वो ये कहते थे कि स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई धंधा है ही नहीं. ही इज अ गुजराती, वो सीधे धंधे की बात करते हैं. तो वो क्या बोलते थे कि इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है. और उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सा आपको धंधा मिलेगा जिसमें आप कितना भी पैसा कमा लो और टैक्स फ्री आपको इनकम मिल रही है. डिविडेंड्स वर टोटली टैक्स फ्री इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव. और वो राकेश झुनझुनवाला, उनका 1000 करोड़ का 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट उनके स्टॉक मार्केट्स में है अलग कंपनी में. वो किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हैं तो 100-200 करोड़ रुपए लगाते हैं वो किसी भी कंपनी में. 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़. और जिस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने जिस शेयर को खरीद लिया, वो समझो वो शेयर्स में उन्होंने पूरा उसका फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर खरीदते हैं वो शेयर्स. सिमिलरली मैं थोड़ा सा आपको जस्ट एक ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, बट एक हमारे यहाँ एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, पराग पारिक म्यूचुअल फंड कंपनी. पराग पारिक वाज अ पर्सन. पराग पारिक का एक म्यूचुअल फंड भी है और पराग पारिक और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी. सर यही एक अकेली म्यूचुअल फंड है जो नैस्डैक पे इन्वेस्ट करती है और देती है अपने. तो ये जो मिस्टर पराग पारिक थे, जिनकी कंपनी बनाई हुई है, इसके फाउंडर, वो उनकी अभी 2-3 साल पहले डेथ हो गई. मिस्टर पराग पारिक वाज आल्सो अ गुजराती. तो उनकी मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा था. पराग पारिक ने इंजीनियरिंग पास करके आए थे ये, और उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे प्रॉफिट्स के लिए, और उसको फिर बाद में बंद करने के लिए बड़ा उनको, मतलब टू स्टार्ट, जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, उसको बंद करना बड़ा, मतलब इमोशनली आपको बड़ा जोर पड़ता है. यार मैंने कितनी मेहनत से इसको, आई नर्चर्ड माय फैक्ट्री एंड नाउ आई एम क्लोजिंग इट डाउन. व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल माय रिलेटिव से दैट यू हैव बीन अ फेलियर. यू नो, ही वाज नॉट गेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट एंड देयर वाज लॉट ऑफ लेबर ही हैज टू पुट इट इन दिस. सो ही वाज इन अ डिलेमा व्हाट टू डू.
then he met one of his uncle. He said, you know, I invest in stock markets. You know, there, you know, I don't have to think that I can just buy any share, I can get out of any share. So, and people are running businesses for me. I don't have to, you know, think of how to do marketing, how to do operations, where to buy raw material, and I buying big company, and you are running a small factory, and there you are struggling day in and day out. So उनको पता नहीं कहाँ से ये बात स्ट्राइक कर गई पराग पारिक को, बोले यार इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं है. तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बेच के एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. बोले दुनिया मेरे लिए काम कर रही है, बिजनेसेस लोग चला रहे हैं, और जिस बिजनेस में मैं देखूंगा कि अच्छा नहीं चल रहा, पैसा निकाल लूंगा, फिर अगले बिजनेस में लगा दूंगा पैसा. एंड ही मेड अ लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट्स एंड ही स्टडीड बिहेवियरल फाइनेंस. आजकल एक टॉपिक आया है, पूरा वर्ल्ड उसको पढ़ रहा है, बिहेवियरल फाइनेंस. और बाय द वे इवन मैंने भी अपनी जो पीएचडी करी है वो बिहेवियरल फाइनेंस में की है. तो उन्होंने बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर वो स्पेशलिस्ट बन गए कि इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसे होता है, वो क्यों कमा नहीं पाता है रिटेल इन्वेस्टर, वो पैनिक ही हो जाता है, हाई रेट्स में खरीदता है, वो लो रेट्स में जैसे ही रेट्स डाउन होने लगते हैं बेचने लगता है, जबकि हमको जैसे ही रेट्स डाउन होते हैं उसमें खरीदना चाहिए. तो उन्होंने बहुत सारी बिहेवियरल की थ्योरी वर्ल्ड ने भी दी है, उन्होंने भी उसको बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं. और उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज खोल ली उन्होंने, अभी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी खोल ली. 2-3 साल पहले उनका एक रोड एक्सीडेंट में न्यूयॉर्क में गए हुए थे, तो वहां उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी. तो उनका ये मानना ये है कि यार इससे बढ़िया जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं इससे बढ़िया कोई काम नहीं है. पब्लिक आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज करा रही है, गवर्नमेंट कंपनी में लगा दो, अंबानी की कंपनीज में लगा दो, अडानी की कंपनीज में लगा दो, टाटा की में लगा दो, जब लगता पैसा बनाओ फिर घुस जाओ, फिर रेट डाउन होते हैं फिर घुस जाओ, फिर पैसा बनाओ फिर घुस जाओ. तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है और आप फ्री हैं. 9:15 से 3:30 बजे आपका मार्केट है, उस समय स्टडी करो, 3:30 बजे के बाद अपना स्टडी करो मार्केट को, या फ्री रहो आप अपना. किसी की गुलामी नहीं है, किसी बिजनेस की गुलामी नहीं है. तो ये भी एक थॉट है, प्रोसेस है लोगों का. तो ये तो जब अभी मिस्टर मोदी ने एक इन्वेस्टर मीट की थी 2015 या 16 में, आने के बाद तब इन्होंने कहा था कि यार ये इन्वेस्टर बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इनके ऊपर भी टैक्स लगाओ. तब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर उन्होंने फिर 1 लाख रुपीस के बाद टैक्स कर दिया और डिविडेंड्स 10 लाख के बाद टैक्स कर दिया. उससे पहले टैक्स फ्री था पिछले 10-12 साल से. तो एनीवे आपको थोड़ा सा मैंने ये चाह रहा था कि थोड़ा सा इनसाइट्स दूं इसमें. आपका कोई एनी कमेंट्स रिगार्डिंग दिस? सर फिर अभी राकेश झुनझुनवाला रो रहा है, हंस रहा है? नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं यार अभी भी ठीक है, 1 लाख तक है, टैक्स दे देंगे, कोई बात नहीं, इतना पैसा पहले कमा लिया, अब 10% टैक्स आ गया. उनके लिए तो 1 लाख कुछ भी नहीं है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में. जिसने करोड़ों रुपया लगाया तो 1 लाख रुपया तो उनको पैसे ही आ जाएंगे 1 लाख के बाद. अब टैक्स देते हैं, ठीक है, अभी भी पैसा कमाते हैं. अब उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. अब स्ट्रैटेजी ये हो जाती है कि पहले लॉन्ग टर्म ही ये था कि भाई 1 साल वेट करो टैक्स फ्री हो जाएगा. अब ये है कि 1 साल के अंदर बेचोगे तो 15% देना पड़ेगा, 1 साल के बाद बेचोगे तो 1 लाख के बाद 10% देना पड़ेगा. तो अब स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है. अब कुछ चीजें आप शॉर्ट टर्म भी प्रॉफिट फिर बुक करने लगते हो कि 10% और 15% में 5% का ही तो डिफरेंस है, हमें प्रॉफिट से मतलब है. ओनली द स्ट्रैटेजीज चेंज ऑफ दीज पीपल. थोड़ा बहुत तो देखो टैक्स देना भी चाहिए हमको. बिजनेसेस में हम क्या ये बोलते हैं कि बिजनेसेस में टैक्स बचाने, लोग टैक्स बचाते हैं, उससे क्या है कि आप अपनी वाइट को ब्लैक कर रहे हो, अपनी इनकम को, अपनी इनकम ही नहीं शो कर रहे हो. कल को आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है या आप एज ए इंडिविजुअल आपने कोई सामान खरीदना है, अपने घर बनाना है, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी इनकम सारी ब्लैक की है, क्योंकि आपने कभी इनकम अपनी शो नहीं करी है. तो इनकम शो करो भाई, थोड़ा बहुत टैक्स दो. और प्लानिंग टैक्स को बचाना है तो प्रॉपर तरीके से बचाओ ना उसको, गवर्नमेंट के रूल समझो और फिर टैक्स बचाओ. और अगर आप कोई 50 लाख रुपया 1 करोड़ कमा रहा है यार, तो उसने यार 8-10 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, उसको देना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ. हाँ ये देखिए, employers contribution to recognized provident fund is exempt up to 8.33% of basic salary, 8.33% of basic salary plus TA, 12% of basic salary, 12% of basic salary plus TA if any,
ये कुछ रूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। हालांकि ये हमने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया ये, बट इसका आंसर फिर भी कोई 12% होगा। हाँ 12% है इसका, बट आंसर एग्जैक्ट आंसर है डी है, 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ एनी। प्लस डीए। डीए अगर है, क्योंकि कई जगह डीए मिलता है, कई जगह डीए नहीं मिलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलता है डीए, प्राइवेट कंपनीज में हर जगह नहीं मिलता है डीए। तो अगर डीए है तो वो भी जुड़ेगा साथ में। तो जो भी उसकी बेसिक प्लस डीए आती है उसका 12% तक जो है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम एनी इनकम टैक्स। ये अंडरस्टूड है। एग्जेम्प्ट अगर हम कहीं पे भी क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो क्योंकि इनकम टैक्स का पेपर है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एट और आफ्टर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इज नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट मतलब कौन सा टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको ये देखना है कौन सा टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। ग्रेचुटी, स्टैट्यूटरी मींस कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, एक रेगुलर पेंशन जो मिलती है, एक लीव सैलरी मिलती है। जब आप रिटायर होते हो तो आपकी जितनी भी लीव सैलरी आपने अवेल नहीं की है ना, उसके बदले में आपको पेमेंट मिल जाता है। अगर वीआरएस होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ट्राई करेंगे कोई आंसर? इसी बहाने ना मैं आपको कई चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो इसका ये है, एक एक करके चलते हैं। ए ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का अभी जो रूल चल रहा है 1920 में 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी जो होती है वो टैक्स फ्री है। ग्रेचुटी मुझे याद नहीं मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। ग्रेचुटी होती है, बताया था मैंने आपको कुछ ग्रेचुटी बीच में रेफरेंस आया था ग्रेचुटी का? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, gratuity basically is given to an employee if an employee has worked for an employer for minimum 5 years. If you have worked for an employer continuously with one employer, if you have worked continuously for 5 years, so after 5 years you are eligible to get gratuity whenever you leave that organization. If you leave that organization at the time of retirement or whenever you leave that organization, so gratuity is given. It is a 15-day salary for each year of having served the company. Let us say आपने पूरे 5 साल करके ही कंपनी छोड़ दी, बट आप एलिजिबल हो गए ग्रेचुटी के लिए, तो 5 साल में हर साल का 15 दिन, तो 15 days into 5 करके आपको जो अमाउंट बनेगा वो ग्रेचुटी होगा। तो जो लोग बहुत सीनियर पोजीशंस पे रिटायर होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी लास्ट ऑन सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होती है। लास्ट ऑन सैलरी में फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल का रिटायर हुआ है तो उसकी लास्ट ऑन सैलरी तो 2-3-4 लाख रुपया होगी महीने की, जो सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुआ है। तो उसके बेसिस पे 15 दिन की सैलरी इनटू उसकी अगर 30-35 साल की सर्विस हो गई तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा, दैट इज ग्रेचुटी। अभी क्या रूल आ गया है, अभी 2 साल पहले रूल आया था, अभी पीयूष गोयल ने कब बजट किया था 2019 के बजट में 20 लाख तक की ग्रेचुटी टैक्स फ्री कर दी है। उससे पहले 10 लाख तक टैक्स फ्री थी। तो 2019-20 में वो लागू हुआ है। इस 19-20 ये जो अभी वर्ष गया है, वित्तीय वर्ष, इसमें 20 लाख तक की ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जितना भी पैसा मिलता है वो सारा टैक्स फ्री होता है। रेगुलर पेंशन जो मिलती है वो टैक्सेबल है, इट्स अ टैक्सेबल इनकम। लीव सैलरी जो मिलती है एम्प्लॉय को छोड़ने के बाद, जो उसको कैजुअल लीव उसने अवेल नहीं की थी, सिक लीव उसने अवेल नहीं की, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, वो सारा टैक्स फ्री होता है। वीआरएस अमाउंट, अगर आप जैसे बैंक से वीआरएस लिया है, किसी भी डिपार्टमेंट से आपने वॉलंटरीली बीच में छोड़ा है, तो आपको एक ना कंपनसेशन मिलता है बीच में छोड़ने का। 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो इसका आंसर है, बाकी सब टैक्स एग्जेम्प्टेड है, सिर्फ रेगुलर पेंशन इज नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट। सो आंसर इज सी। रेगुलर पेंशन का मतलब है चाहे आप आर्मी से रिटायर हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ है या प्राइवेट जॉब से रिटायरमेंट हुआ है और उसको अगर पेंशन मिल रही है तो पेंशन इज ऑलवेज अ टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। वो अलग बात है, उसको अपने टैक्स स्लैब में लगाएगा, उसको पहला 2.5 लाख रुपया तक उसका पेंशन टैक्स फ्री होगा। सीनियर सिटीजन का पहला 3 लाख रुपया टैक्स फ्री होगा। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर से ऊपर हो गया तो 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगा। वो अलग कैलकुलेशन है। बट
basically we will say that the income is a taxable income. तो इसके बाद अभी हम it is around 10:30 now. So अभी I am stopping my recording and we will now go to the next session at 11:45. 15 मिनट बाद हम दूसरे सेशन में जाएंगे. अभी मैं वो गलती नहीं करूंगा सीधे लॉग आउट करने की. So I am stopping the recording.